ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ 22ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਭਗਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖ ਆਗਾਸਾ ਆਗਾਸ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਤਾਲ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। 18ਵੀਂ 19ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕਿੰਨੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਭਾਵ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਓ, ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਜਪੀ ਨੇ, ਤਪੀ ਨੇ, ਸੂਰਮੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ, ਅੰਧਖੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ, ਹਰਾਮਖੋਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਾਪੀ ਨੇ, ਹਤਿਆਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਐਸੇ ਰੂਪ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਖ ਨਾਮ, ਅਸੰਖ ਥਾਂ, ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵ ਹਨ। ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਅਸੰਖਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ। ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਸੰਖ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰ ਨ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਉਸ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਵਾਰ ਨ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲਿਕਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਭਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਵਣ ਚਿਤ, ਕਵਣ ਵਾਰ, ਕਵਣ ਸੀ ਰੁੱਤੀ, ਮਹਾ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਤਿਥ ਸੀ, ਮੌਸਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਗਰ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਜ਼ੀਆਂ, ਜੇਕਰ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਤਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੇ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਨੇ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿੱਠੀ ਕੋ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸੋਈ। ਭਾਵ ਮਾਲਿਕ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਾਜਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਮਿਅਤ ਏਕੋ ਹੋ ਸਿਆਮ, ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਗਿਆ।
कुरान शरीफ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਹੋਜ਼ਾ ਕੁਲ ਫੀਏ ਕੁਲ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, there was none but God, God said let there be light and there was light। ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ऋषि मुनि पीर पैगंबर होए जिन्होंने लभण का यतन किया है। साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं, जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई, वो मालिक आप ही जानता है कि उसने इस सृष्टि की रचना कदों की है। कदे ऐसा समा सी अरबद नरबद धुंधुकारा तरन न गगना हुक्म अपारा, ना दिन रैन न चंद न सूरज सुन समान लगाए। भाव एक कोपा हनेरा सी, परमात्मा का हुक्म होया, पहले पानी बनया, फिर जीव जंतु बने ने। आज संसार है, कल नहीं सी, अगे तो नहीं पता, पर वो मालिक आप ही जानता है। आप ही ने आप साजे हो, आप ही ने रचियो नाव, दोए कुदरत साजी है कर आसन डिठो जाओ। प्रभु परमात्मा एक आसन पे बैठ करके सारा जोई तमाशा आप देख रहा है। जरे जरे में प्रभु परमात्मा सर्व व्यापक है, हर जगह मौजूद है। गुरु नानक साहिब महाराज जो बगदाद पहुंचे ने, ते बगदाद तो बाहर जाकर के गुरु साहिब जी ने आसन लाया है। ते आसन ला करके साहिब जी ने एक नमाज के वांगू आवाज दी, होका दिता है, गुरवर अकाल सत श्री अकाल। सतनाम का नमाज के वांग एक बहुत ही मिठी सुरीली आवाज के विच ये होका दिता, गुरवर अकाल सत श्री अकाल। तो पूरा जिहड़ा बगदाद है वो सुनमन हो गया है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने बड़े सुंदर वाक लिखे ने, एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना। एक गुरु नानक साहिब जी के नाल रबाबी मरदाना जी। दित्ती वान निवाज कर सुन समान हुआ जहाना। जो निवाज दित्ती ते पूरा जहान जड़ा है सुन हो गया है। सुन मुन नगरी भई, सारे बड़े हैरान हुए ने, आवाज कितों आई इतनी प्यारी इतनी मिठी। सुन मुन नगरी भई, देख पीर भया हैराना। ते पीर देख करके बड़ा हैरान होया है। वेख्या ध्यान लगाए कर एक फकीर बड़ा मस्ताना, एक बड़ा मस्त फकीर अपनी मस्ती में बैठा होया है, सतनाम का जाप कर रहा है। पूछया फिर क्या दस्तगीर कौन फकीर किसका घरियाना, भी तुहाडा घरियाना की है, तुसीं कौन हो, कित्थों आए हो। नानक कल विच आया रब फकीर इको पहचाना। तख्त आकाश चहो दिस जाना। भाई साहब भाई मर्दाना जी ने समझाया भी ये निरंकार को एक करके जानते हैं। कुदरत के विच केवल एक नूं लिखिया है, एक दे ही उपासक ने। नानक कल विच आया रब फकीर इको पहचान है, केवल इको एक की पछाण है, एक नाल ही जोड़ते हैं। ते गुरु नानक साहिब महाराज जी तो फिर पीर ने बहस की है। पुछे पीर तकरार कर ये फकीर बड़ा अतताई, ये बहुत ही बड़ा फकीर है, बड़ियां इसके विच रहमतां करामातां ने। इत्थे विच बगदाद दे बड़ी करामात दिखलाई। इसने बगदाद दे विच आकर के बहुत बड़ी करामात दिखलाई है, बहुत बड़ी करामात इसने दिखाई है। पाताला आकाश लख ओढ़क पाल खबर सुनाई। असी हुण तक ये भी जानते सां भी सत आकाश ने ते सत पताल हैं, पर अज सानू ये पहली बारी पता लग्या है लखां ही आकाश ने ते लखां ही पताल हैं। ये सानू अज महसूस होया है। पाताला आकाश लख ओढ़क पाल खबर सुनाई। फिर दुरायण दस्तगीर असी भी वेखां जे तोय पाई। असी भी वेखना चाहते हैं जे तुसी महसूस किया है। नाल लीता बेटा पीर दा अखी मीट गया हवाई। फिर पीर दा जिहड़ा बेटा है वो नाल लिया गुरु साहिब जी ने, उसके सिर ते बख्शिश दा हथ रखिया ते अखां मीटियां। एक पल दे विच उसनूं ये ज्ञान कर दिता, सोझी कर दित्ती लखां ही आकाश ते लखां ही पताल ने। एक पल दे विच गुरु साहिब जी ने उस बच्चे ते बख्शिश की, रहमत की। बलिहारी पुर आपने दिवहाड़ी सदवार
जिन मानस के देवता किया करत न लागी वार। जिसते मेरे सतगुरु जी मेहर करते हैं, बख्शिश करते हैं, तो इंसान तो उसको कदों देव पुरुष बना देंगे ने, एक पल भी नहीं लगता। ऐसे सतगुरां ते बलिहार जाइए, सदके जाइए, बलिहारी गुर अपने त्योहारी सदवार दिन सैकड़े बारी बलिहार त्योहारी सदवार जिन मानस के देवता किया, जिन्होंने मानस को देवता बना दिता, करना लागी बात कोई समा नहीं लग्या। उत्थे जो पीर का पुत्र है उसको नाल लिया, उसके सिर ते गुरु साहब जी ने बख्शिश की ते ज्ञान की दात तो मिली। उन्होंने सोची हुई ते महसूस किया भी लखां ही आकाश ते लखां ही पताल ने, लख आकाश पताल लख अख फरक विच सब दिखलाई। एक अख दे फरक दे नाल भाव एक पल दे विच उन्हें सोझी करा दी। भार पड़ कचकोल भार कचकोल प्रसाद का धुरों पतालों लई कढ़ाई, जाहर कला ना छपे छपाई। सो गुरु साहब जी ने यह जो कौतक है बगदाद विच वरताया ते उत्थों दे जिहड़े लोकां नूं ये समझा दिता कि लखां ही आकाश ते पताल हन ते जिहड़ा पीर है ते उसने गुरु साहब जी दे चरणां विच सिजदा कीता, मत्था टेकिया ते गुरु साहब गुरु नानक साहब महाराज बख्शिश कर रहे हैं इस पावन पवित्र पौड़ी दे विच पाताल पाताल लखां ही पाताल ने ते लखां ही आकाश ने। इत्थे जिहड़ा लख शब्द है वो दहली दीपक है। जिवें दहली ते दीवा जगा दी तो दोवें पासे रोशनी करता, दोवें पासे चानण करता है। तो इस तरीके के नाल ये लख जिहड़ा शब्द है पाताला पाताल लख आगासा आगास, जां पाताला पाताल लख आगासा आगास, दोवें तरीके नाल पढ़ सकते हैं। तो मीनिंग की कोई बदलाव नहीं है। साहिब जी बख्शिश कर रहे हैं तो उस अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा की उस करतार की कुदरत दे विच लखां ही आकाश हैं ते लखां ही पाताल ने। पाताला पाताल लख आगासा आगास, उड़क उड़क पाल थके वेद कहन एक बात। बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि होए ने जिन्होंने कुदरत का अंत पाने का यतन किया है, पर वो भाल कर करके थक गए ने। सारे ही वेद एक जुबान करके आख रहे हैं कि कोई भी उस मालिक की कुदरत का अंत नहीं पा सकिया है। ओढ़क ओढ़क भाल थकी, खोज कर करके वो थक गए ने। ओढ़क ओढ़क भाल थकी, भाल कर करके वो थक गए ने, पर कोई भी लख नहीं सकिया उस करतार की कुदरत नूं। ओढ़क ओढ़क भाल थकी वेद कहन एक बात, सारे ही वेद एक जुबान होकर के आखरे ने कोई भी उस मालिक का ना ही अंत पा सकिया है ते ना ही कोई अंत पा सकता है जी। सहस 18 कणक तेबा आसुलु एक तात। सहस आख दिन हजार नूं 18,000 कुल आलम 18,000 होए ने। 4 किताबां कुरान अंजील जंबूर ते तौरे, ये चारे ही किताबां ते 18,000 आलम एक जुबान होकर के आखिर में इन्हां दा सारियां दा जिहड़ा मुढ़ है वो अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा आप है। सहस 18 कहन कतेवा असुलू इन्हां दा मुढ़, असुलू एक धात भाव एक अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा ही इन्हां दा मुढ़ है। ते 18,000 आलम ते चारे किताबां भाव सारियां किताबां इस गल नाल सहमत हैं कि प्रभु परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा एक है। ते उस एक ने ही इस सारी सृष्टि की सिरजना की है ते इस सृष्टि का कोई भी अज तक अंत नहीं पा सकिया है जी। लेखा होए तां लिखी है लेखे होए विनाश। उस अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा के बारे कोई लिख नहीं सकता। भगत कबीर साहब जी के बड़े सुंदर वाक्य ने, कबीर साथ समुंदे मस करो कलम करो बन राय, वसुदा कागज ज्यों करो हर जस लिखन न जाए। कि सारी सृष्टि सारी धरती का मैं कागज बना लवा, सारी वनस्पति की
मैं कलम बना लवा, जिन्ना पानी है सारे पानी की मैं स्याही बना लवा, कहते फिर भी उस मालिक का अंत नहीं पा सकता, उसके बारे कुछ लिख नहीं सकता। लेखा होवे तां लिखिए जी, कोई लेखा होवे तां ही असीं लिख सकीए, भाव उसका लेखा ही कोई नहीं कर सकता। लेखा होए तां लिखिए, लेखे होए विनाश, जे लिखण का जतन करिए तो लेखा ही खत्म हो जाएगा, पर कोई उस प्रभु परमात्मा बारे कुछ भी लिख नहीं सकता है जी। नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप। नानक वड्डा आखी, प्रभु परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू बड़ा ही बेअंत है, बहुत बेअंत है। ते उस प्रभु परमात्मा के बारे कोई कुछ दस नहीं सकता। साडे वड्डे कहण ते वड्डा नहीं हो सकता, ते साडे छोटे कहण तो छोटा नहीं हो सकता। जिवें इंसान है, किसी को थोड़ी जी वड्याई दईए तो ईगो विच आ जाता है, जां उसका नाम ना लईए दीवान दे विच तां भी उसदे विच ईगो आ जाता है, मेरा नाम क्यों नहीं लिया। सो जिवें मनुख है वड्याई दे विच वड्डा हुंदा है, निंदा करन विच गुस्सा आ जाता है, पर प्रभु परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू बड़ा बेअंत है। साडे वड्डे कहण लगा वड्डा नहीं होंदा, साडे छोटे कहण लगा छोटा नहीं होंदा। नानक वड्डा आखिए, कि प्रभु परमात्मा की सिलसिला करिए, उसके मालिक की बंदगी करिए, आपे जाने आप। वो अकाल पुरख वाहिगुरू प्रभु परमात्मा किड्डा को वड्डा है, वो आप ही जानता है। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप, वो आप ही जानता है। अकाल पुरख वाहिगुरू किड्डा को वड्डा है, ते उस वड्डे अकाल पुरख वाहिगुरू वड्याई वड्डा पाया, उस मालिक की वड्याई करके उसकी सिलसिला करके ही असीं उसनूं प्राप्त कर सकते हैं। सो सतगुर सच्चे पातशाह जी मेहर करन, सानू सोझी बख्शण, नाम की दात बख्शण, ताकि उस अकाल पुरख वाहिगुरू के नाम की कमाई करके सिलसिला करके उसकी वड्याई करके उस मालिक प्रभु परमात्मा के दर तक पहुँच सकिए, अपने हृदय को उसको महसूस कर सकिए, पूरे सच्चेहार बन सकिए। सतगुर सच्चे पातशाह जी आप मेहर करन, बख्शिश करन, सन नाम की दात बख्शण, ताकि बंदगी करके असीं सारे अपना जीवन सफला कर सकिए। इत्थे ही दीवान की समाप्ति है। आप समूह संगत ते सतगुरु जी बख्शण योग हो, बख्श लेना। आओ आखिरी पंक्तियां पढ़ के दीवान की समाप्ति करते हैं। नानक वड्डा आखिए